ٹائمز میں خوش آمدید۔ امید پورٹل پر اوقاف کی جائیداد کے رجسٹریشن کی تاریخ آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے دیش بھر کے مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بیچ اتر پردیش کے مسلمانوں کو بڑی راحت مل گئی ہے، جہاں 6 مہینے کے لیے وقف ٹریبونل نے ڈیٹ کو آگے بڑھا دیا ہے اور اگلے 6 مہینے تک اتر پردیش میں اوقاف کی جو جائیداد ہے اس کا رجسٹریشن ہو سکتا ہے۔ 5 دسمبر 2025 امید پورٹل پر اوقاف کے جائیداد کی رجسٹریشن کی آخری تاریخ تھی۔ 5 دسمبر سے ایک دن پہلے یا اسی دن صبح میں مائنورٹی افیئرز کے منسٹر کرن رجیجو نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے امید پورٹل پر ڈیٹ آگے بڑھانے سے انکار کر دیا، اس لیے میں بھی آگے نہیں بڑھا سکتا ہوں۔ لیکن جن لوگوں نے لاگ ان آئی ڈی بنا لیا ہے، جو لوگ رجسٹریشن کرا چکے تھے اپنا اور ان کی پراپرٹی کا اندراج نہیں ہو سکا، تو وہ لوگ اگلے 3 مہینہ تک مزید بغیر کسی جرمانہ، پینلٹی اور فیس کے اوقاف کی جائیداد کا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے ابھی تک کوشش ہی نہیں کی، ان کے لیے کوئی اور موقع نہیں ہے، وقف ٹریبونل سے موقع مل سکتا ہے۔ چنانچہ یو پی سنی سینٹرل وقف بورڈ کو وقف ٹریبونل سے راحت مل گئی ہے اور یو پی وقف ٹریبونل نے 6 مہینے کے لیے مزید ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے اور اب جون 2026 تک یو پی میں امید پورٹل پر اوقاف کی جائیداد کا رجسٹریشن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ راحت صرف یو پی وقف بورڈ کو ملی ہے، یو پی کے مسلمانوں کو ملی ہے۔ مدھیہ پردیش، بہار، مہاراشٹر یا دیش بھر کے جو بقیہ اسٹیٹ ہیں، بقیہ صوبے ہیں، وہاں کے لوگوں کو ابھی تک وقف ٹریبونل سے ابھی تک راحت نہیں ملی ہے۔ مدھیہ پردیش میں بھی وقف بورڈ نے وقف ٹریبونل میں جا کر پٹیشن دائر کی ہے، کچھ اسٹیٹ کے وقف بورڈ نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے۔ مطالبہ کیا ہے کہ امید پورٹل کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے تاکہ ہزاروں لاکھوں اوقاف کی جائیداد کا رجسٹریشن ابھی تک باقی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے پہلے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ دوبارہ پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا؟ آنے والا وقت بتائے گا۔ سنی سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں یو پی میں ظفر فاروقی، انہوں نے ای ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وقف ٹریبونل نے یو پی میں مزید 6 مہینے تک ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اس لیے جون 2026 تک اوقاف کی جائیداد کا رجسٹریشن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اتر پردیش میں اوقاف کی ٹوٹل جائیداد اور پراپرٹی ہے 1,26,000 اور ابھی تک صرف 76,000 کا ہی رجسٹریشن ہو سکا اور امید پورٹل نے 12,500 پراپرٹی کو ہی اپروول دیا ہے، منظور کیا ہے، رجسٹریشن کرایا گیا 76,000 کا اور اپروول ملا ہے ان میں سے 12,500 کے ہی، تو بقیہ کو اپروول بھی نہیں مل سکا اور آدھے سے زیادہ کا رجسٹریشن ہونا ابھی باقی ہے۔ پچھلی رپورٹ میں نے بتایا تھا کہ پورے ہندوستان میں تقریباً 9 لاکھ اوقاف کی ٹوٹل جائیداد ہے اور ان میں سے صرف 30% یعنی مان لیجئے 3 لاکھ اوقاف کی جائیداد کا ہی رجسٹریشن ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ یا 6 لاکھ اوقاف کی جائیداد ایسی ہیں جن کا رجسٹریشن ابھی بھی باقی ہے اور اسی وجہ سے مسلمانوں میں پریشانی ہے، مسلمانوں کو ٹینشن ہے۔ جن لوگوں نے امید پورٹل پر لاگ ان آئی ڈی بنا رکھا تھا، اب وہی مزید اگلے 3 مہینے تک اوقاف کی جائیداد کا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مائنورٹی افیئرز کے منسٹر کرن رجیجو سے ملاقات کا وقت مانگا تھا اور خبر کے مطابق ملاقات کا وقت مل چکا ہے۔ یہ ملاقات کے دوران آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا مطالبہ یہی ہوگا کہ امید پورٹل کی جو ڈیٹ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ آل انڈیا ملی کونسل نے بھی ملاقات کے لیے وقت مانگا ہے اور امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں آل انڈیا ملی کونسل کے ڈیلیگیشن کو بھی کرن رجیجو سے ملاقات کا وقت ملے اور یہ بھی یہی مطالبہ کریں گے کہ ڈیٹ کو آگے بڑھا دیا جائے۔ اس کے علاوہ امید پورٹل پر رجسٹریشن کے لیے جو شرطیں لگائی گئی ہے، جس طرح لگاتار زیادہ سے زیادہ ڈاکومنٹس مانگا جا رہا ہے، عموماً اوقاف کی جائیداد کے پاس اس طرح کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو شاید کچھ کالم کو کم کیا جائے، ڈاکومنٹس کچھ کم مانگا جائے، اس کا بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کرن رجیجو راحت دینے والے ہیں، یہ کہنا مشکل ہے۔ ملی تنظیموں نے بھی شروع میں بائیکاٹ کیا، وقف قانون کی مخالفت کی، سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی امید پورٹل کا بائیکاٹ کیا تھا اور 3 مہینہ گزر جانے کے بعد پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ
और दूसरी मिली तंजीमों ने कहा कि अब हमें उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है, और जिसका नतीजा ये हो सका कि 30% भी औकाफ की जायदाद मुकम्मल तौर पर वहाँ रजिस्टर नहीं हो सकी है, और 70% से ज़्यादा औकाफ का इंदराज होना वहाँ पर बाकी है। इस वीडियो में एक और ख़बर जान लीजिए, और ये ख़बर भी बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहले स्क्रीन पर आप इस शख्सियत को देखिए। इनका नाम है मुफ्ती एजाज अरशद कासमी। साल 2021 में इनका इंतकाल हो गया, ये अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन साल 2020 में इन्होंने आरएसएस और बीजेपी को जो एक्सपोज किया था, बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए इन्होंने जो तरीक़ा अपनाया था वो अभी तक जारी है, और इसी बुनियाद पर रोज़ाना आरएसएस और बीजेपी के लीडर्स देशभक्ति के नाम पर, हुब्बुल वतनी के नाम पर एक्सपोज होते हैं और उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। आप खामखा के बेगर मतलब के बेतुके बात कर रहे हैं। सुजलाम सुफलाम वंदे कहाँ चले गए? यही है, ये तो तौहीन कर रहे हैं आप, ये इहानत कर रहे हैं आप पर। राष्ट्र विरोधी का आप पर एक्ट लगेगा अभी। नवीन जी, मैं ये कह रहा हूँ हुब्बुल वतनी शब्द के साथ नहीं हो सकती है। आप अपनी साबित कीजिए, मौलाना मुफ्ती एजाज कासमी साहब अपनी साबित करेंगे। कोई नहीं बोल रहा है नवीन जी। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम संशयाम मल्याम सुब्रत ज्योतिषम पुलकिताम वंदे मातरम पुलकिता सुमिता दुमल सुनामीम सुहासिन सुमंद्र भुस्मानी वंदे मातरम। आपने इस वीडियो को देखा। ये वीडियो है साल 2020 के एक टीवी चैनल के डिबेट की। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी बीजेपी के स्पोक पर्सन नवीन को सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि अगर सच में तुम देशभक्त हो, तुम्हारा ये मानना है वंदे मातरम पढ़ना देशभक्ति है, हुब्बुल वतनी है, तो तुम वंदे मातरम सुना दो। और बीजेपी का ये नेशनल स्पोक पर्सन वंदे मातरम नहीं सुना पा रहा है। ये कभी नीचे देखता है, कभी ऊपर देखता है, और इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वंदे मातरम को पढ़ना। यानी ज़ुबानी याद करना तो सोचिए, देख कर भी पढ़ना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। इन दिनों हमारे देश में एक मरतबा फिर वंदे मातरम पर बहस हो रही है। पार्लियामेंट में 2 दिनों तक बहस होती रही। एक दिन लोकसभा में बहस हुई, दूसरे दिन राज्यसभा में बहस हुई, और दोनों जगह बीजेपी के एमपीज ने मुसलमानों को टारगेट करके कहा अगर इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा। और मुसलमानों ने कहा कि वंदे मातरम पढ़ना शिर्क है, इस्लाम के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। वंदे मातरम में भारत माता को देवी देवता कहा गया, इसकी पूजा के अल्फाज उसमें शामिल हैं, और मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकता, किसी की पूजा नहीं कर सकता। इसलिए अगर वंदे मातरम हुब्बुल वतनी का, देशभक्ति का पैमाना है, तो मुसलमान इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। यही बर्दाश्त नहीं हो सका। और ये बहस पहली मर्तबा देश में नहीं छिड़ी है, बल्कि आज़ादी से पहले ये बहस चल रही है, और इस बहस को यहाँ तक पहुँचाने में कांग्रेस का सबसे नुमाया किरदार है। कांग्रेस ने ही सबसे पहले वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग या राष्ट्रीय गीत करार दिया था। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। राबिंदर नाथ टैगोर ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को बाज़ाब्ता ख़त लिखकर कहा था कि वंदे मातरम शिरकिया अक़ायद पर मुश्तमिल है, मुसलमानों के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत बनाना सही नहीं होगा। इसके बावजूद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने वंदे मातरम की शुरू की 2 लाइन को राष्ट्रीय गीत का हिस्सा बना दिया, इसको आज़ादी का नारा बना दिया। उसके बाद लगातार इस पर बहस होती रही, और अब बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया, आज़ादी से पहले, आज़ादी के दौरान, और अब भी हमेशा वंदे मातरम को इशू बनाया जाता है। लेकिन वंदे मातरम पर आरएसएस और बीजेपी को जिस तरह संजय सिंह ने एक्सपोज किया है, कपिल सिब्बल ने एक्सपोज किया है, मनोज कुमार झा ने एक्सपोज किया है, इसी तरह खड़गे ने एक्सपोज किया है, वो बहुत ज़्यादा अहम है। और ये जो स्पीच है संजय सिंह की, सुनने से ताल्लुक़ रखती है। मुकम्मल स्पीच मिले टाइम्स के यूट्यूब पर ही मौजूद है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ पार्ट आप सुनिए। मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप 4 लोगों का नाम बताओ। आप अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं,
विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया, और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं। आपने सुना संजय सिंह को, जरा खड़गे और दूसरे एमपीज को भी सुन लीजिए। महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? ब्रिटिशों के पास नौकरी कर रहे थे। निकाल के देखो। अरे, और आप हमको देशभक्ति सिखाते हो, हमको पैट्रियोटिज्म सिखाते हो। अरे, पहले तो आप पैट्रियोटिज्म के नाम से डरते थे और सिर्फ सेवा करना ब्रिटिशरों का जानते थे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक अंग्रेज था हेनरी क्रेक, 1937 में उसने ये बोला, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे उनके बारे में ये बोला, बोले वंदे मातरम हैज बीन लिटरली द वॉर क्राई ऑफ द टेररिस्ट। क्या मतलब था? कि जो वहां लड़ाई लड़ रहे थे कॉलोनियल पावर के खिलाफ, उनको टेररिस्ट बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि अपने हकों के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए बुलाया गया ना। तो आजकल के जो हमारे छात्र हैं वो टेररिस्ट हो गए हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं वो टेररिस्ट हो गए हैं, उनके खिलाफ यूएपीए ये चीजें लग रही हैं ना। तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? सत्ता पक्ष के लोग तो लड़ नहीं सकते। तो जो अचंभे की बात यह है कि ये वंदे मातरम की बात करते हैं, जब हमें वंदे मातरम की बात करनी चाहिए। वंदे मातरम तो हमें चिल्लाना चाहिए ना। इनका क्या हक है? ये तो अत्याचार रोज करते हैं, जनता के ऊपर रोज करते हैं ये अत्याचार। इन तमाम लोगों को आपने सुना, और इन तमाम लोगों ने जिस तरह वंदे मातरम पर एक्सपोज किया है आरएसएस को, बीजेपी को, इससे बीजेपी जलील हो चुकी है। बीजेपी के पास कुछ भी जवाब नहीं बचा है। इन दिनों ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे राइट विंग के जर्नलिस्ट मुसलमानों के बीच में जाते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम वंदे मातरम सुनाओ, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को खुद वंदे मातरम याद नहीं है। और टीवी चैनलों पर भी इन दिनों कंटिन्यू जब सवाल किया जाता है तो लोग इसी तरह पल्ला झाड़ते हैं, भागते हैं और वंदे मातरम नहीं सुना पाते हैं। 2 दिन पहले ही आरजेडी की एक स्पोक पर्सन की वीडियो वायरल हुई। प्रियंका भारती ने बीजेपी के एक स्पोक पर्सन को कह दिया वंदे मातरम सुना दो, तो बंदा कहने लगा ये क्या कर रही हो तुम, ये वो, इस तरह की। इसी तरह संदीप चौधरी ने बीजेपी के एक स्पोक पर्सन को कह दिया वंदे मातरम सुना दो। अरे, लोग जवाब नहीं दे सके। वंदे मातरम पर आज़ादी से पहले से सियासत जारी है, अब भी जारी है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ इस देश में हैं जिसको बीजेपी मुद्दा बना रही है, लेकिन उसको मुद्दा बनाने का आगाज़ क्या था? कांग्रेस ने ही, और आज कांग्रेस को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।